Good morning, students. Today I am going to discuss numerical based upon the topic law of vector addition. Example number 2 is a body is simultaneously given two velocities, one 30 meter per second due east and other 40 meter per second due north. Find the resultant velocity. Here we find out this resultant velocity. So let us consider a body from point O is moving in the east direction with the velocity 30 meter per second, and body from point O moving in the north direction with the velocity 40 meter per second, and let V vector represents the resultant velocity of the body. सो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पैलोग्राम को कंप्लीट करेंगे. कैसे? सी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सी ए परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड एंड सी बी परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड. क्लियर? सो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इन पैलोग्राम law vector addition is r is equal to square root of p square plus q square plus 2pq cos of theta. Here p and q represent the here जैसे कि हमने p और q दो वेक्टर लिए हैं और r उन दोनों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट. तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta. Here theta represent the angle between vector p and vector q. Clear? So by applying same formula here resultant is v vector. So the magnitude of v vector is v is equal to square root of va square vb square plus 2 va vb cos of theta. Here theta is 90. The angle between va vector and vb vector is 90 degree because va vector is lying in the east direction and vb vector is lying in the north direction, and we know that angle between east and north direction is 90 degree. ठीक है? So put cos theta 90 here. We know that cos 90 is 0, so this term will become equal to 0. So resultant v is equal to square root of va square plus vb square. So put the value va which is equal to 30 and vb is equal to 40. So v is equal to square root of 30 square plus 40 square. So we get v is equal to square root of 2500. So 2500 can also be written as 50 whole square. So v is equal to square root of 50 whole square. So this square is cancelled out with square root. We get v is equal to 50. So velocity v is equal to 50 meter per second. This is the magnitude of this resultant velocity, which is equal to 50 meter per second. Now we want to find out direction of this resultant. So let us consider this resultant makes an angle beta in the direction, makes an angle beta, जो resultant है beta angle बना रहा है with the va vector, which is va वेक्टर जो है जो ईस्ट डायरेक्शन में हमारे लाई कर रहा है. ठीक है? सो इन दिस ट्राइंगल COA tan बीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. हेयर परपेंडिकुलर इज AC and base is OA. Also we know that AC is equal and parallel to OB because this is a parallelogram and opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. So AC is equal to OB. So tan beta is equal to OB upon OA. The value of OB is 40 and the value of OA is 30. So the tan beta is equal to 1.3333 and the value of beta is equal to tan inverse 1.3333. On taking tan inverse on both sides we get the value of beta. So beta is equal to tan inverse within bracket 1.3333, and this value of tan inverse can be find out by using natural tangents table. स्टूडेंट्स आपकी बुक के लास्ट में, जो बुक का सेकंड पार्ट है आपका, उसके लास्ट में आपके टेबल्स दिए हुए हैं साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट्स का, लोग का. तो उनमें से उन टेबल में से हम नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल यूज़ करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है?
सो दिस इज़ द टेबल फॉर नेचुरल टेंजेंट्स। सो इस टेबल में हमें इस साइड पे डिग्रीज़ में वैल्यू दी हैं और इस साइड में मिनट में वैल्यू दी हैं। ये जो 0-6-12 है ये सारा मिनट में रिप्रेजेंट करा अप टू 54 और यहाँ डिग्री में रिप्रेजेंट करें 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री अप टू सोन 44 डिग्री एंड हेयर 45 डिग्री अप टू सोन 89 और 90 डिग्री। ऊपर अगेन हमें मिनट्स में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम tan इनवर्स को पहले फाइंड करने से पहले हम पहले tan ऑफ एंगल, कुछ भी एंगल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। उसके बाद हम tan इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल tan 27 डिग्री 16 मिनट। मतलब हम 27 डिग्री और 16 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले टेबल में 27 डिग्री की चेक करेंगे कि वेयर इज़ 27 डिग्री इन द टेबल। सो चेक 27 डिग्री इन डिग्रीज कॉलम। सो हेयर इज़ 27 डिग्री। तो आप देखोगे 27 के कोरस्पॉन्ड बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो कौन सी वैल्यू अब हमने उठानी है ये देखना है। तो इन वैल्यू को उठाने से पहले इसमें ध्यान से देखो कि जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है दैट इज़ 0.5095 और दूसरी वैल्यू के आगे कोई पॉइंट नहीं लगा। बट ये बेसिकली अंडरस्टूड ही होना चाहिए, अगर फर्स्ट वैल्यू के आगे पॉइंट है तो बाकी सारी जो वैल्यूज़ होंगी उनके आगे भी क्या होगा, पॉइंट। मतलब ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस वैल्यू को देखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.5117। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमने कितने मिनट फाइंड करने हैं, 16 मिनट। तो अब हम चेक करेंगे कि 27 डिग्री तो हमें पता चल गया कि हमने ये रो को देखना है और कौन सी वैल्यू को देखना है, तो उसके लिए हमें मिनट को देखना पड़ेगा। अब हमें कितने मिनट चाहिए, 16 मिनट। 16 मिनट ऊपर हमारे नहीं गिवन, तो हम चेक करेंगे कि 16 किसके बीच में लाई कर रहा है, 12 मिनट और 18 मिनट के बीच में लाई कर रहा है। तो हम इसकी वैल्यू पीछे वाली ले लेते हैं, 12 मिनट वाली। ठीक है, तो इसमें कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बस प्लस माइनस डिफरेंस का ही फ़र्क आएगा और कुछ नहीं है कि एक में ऐड हो जाएगा दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, जो भी हम उसमें ऐड करेंगे, उसमें जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसमें मीन डिफरेंस में भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, और पीछे वाली में ऐड हो सकता है। ठीक है, तो यही इसमें फ़र्क है। तो जो 16 मिनट है उसके इस दोनों के बीच में लाई कर है, तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली। तो इसके कोरस्पॉन्ड देखो 27 डिग्री के कोरस्पॉन्ड और 12 मिनट के कोरस्पॉन्ड मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 5139। एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है, 0.5139। सो हेयर इट इज़ 0.5139 फॉर 27 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, बट हमें कितने मिनट चाहिए, 16 मिनट। ये कितने मिनट के लिए वैल्यू आई है, 12 मिनट। ठीक है, तो अभी भी रिमेनिंग 16 मिनट और 12 मिनट, कितने मिनट का और डिफरेंस अब का फ़र्क आ रहा है, 4 मिनट का। तो 4 मिनट की जो वैल्यू हम चेक करेंगे, तो 4 मिनट की वैल्यू हमारे पास एक कॉलम होता है टेबल में दैट इज़ मीन डिफरेंस, उसमें से हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ कॉलम फॉर मीन डिफरेंस। सो हेयर वैल्यू इज़ 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute and 5 minute. We need 4 minute. So correspond to 27 degree. The value of 4 minute is 15. Clear? So correspond to 27 degree. The value of 4 minute is 15. So add 15 here, so we get 0.5154. So this is the value of this tan 27 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, अब जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उसमें tan बीटा कितना आ रहा था, 1.3333 एंड वी हैव टू फाइंड आउट बीटा। इसमें क्या था, हमें ये एंगल पता था बीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था, बट इसमें क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट बीटा। सो इसी के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस tan को इधर लेके तो tan इनवर्स बन गया, तो tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम टेबल में पहले इसकी वैल्यू देखेंगे कि इसके नियर बाय कौन सी डिग्री आ रही है। ठीक है,
सो ध्यान से कि 1 पॉइंट समथिंग हमें कुछ चाहिए, तो ये सारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0.0000 ये सारे, ठीक है। सो ये सारे के आगे क्या है, पॉइंट, तो इसमें कोई भी वैल्यू जो नहीं फिट करेगी जो हमें चाहिए। तो नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1 पॉइंट समथिंग और हमें क्या चाहिए 1.33। तो इसमें हम चेक करेंगे कि 1.33 हमारा किस में लाई कर रहा है। तो इसमें देखो अब ये वैल्यू आनी शुरू होगी इसके नियर। सो ये इसमें हमारे पास आ रही है 53 डिग्री के कोरस्पॉन्ड। तो फर्स्ट वैल्यू इसमें क्या है 1.3270। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3319 लिखा है, एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है 1.3319। मैंने यही बताया था, अगर जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 53 डिग्री के रो में हम जब देख रहे हैं, तो फर्स्ट जो एंट्री है उसमें अगर 1 पॉइंट समथिंग या कुछ भी है, तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे उस रो के, वो भी सारी वैल्यू सेम कंसिस्ट करेंगे, मतलब सेम डिजिट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो अगर ये डिजिट 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी डिजिट 1 से स्टार्ट होंगे। सो हेयर 3319 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 1.3319, 3367 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 1.3367। तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1.3333। सो चेक कि 1.33, क्योंकि इसके आगे तो 34 हो गया तो ये नहीं लेंगे, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लाई करेगी तो इसके कोरस्पॉन्ड मिनट कितने हैं 6 मिनट, इसके कोरस्पॉन्ड मिनट कितने हैं 12 मिनट, क्लियर। और इन दोनों में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम ये वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये वैल्यू इसके ज़्यादा नियर है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू को जब कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 53 डिग्री 6 मिनट इज़ इक्वल टू 1.3319। बट एक्चुअल में हमें वैल्यू चाहिए 1.3333। तो इसमें हमें 19 के प्लेस पे 33 चाहिए, तो हमें इसमें 14 और ऐड करने पड़ेंगे इस प्लेस पे, ठीक है। तो ये जो एडिशन है ये अगेन हम मीन डिफरेंस वाला कॉलम उठाएंगे, उसी में से जो भी हमारी वैल्यू जो हमें ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए उसी से ही हम ओवरकम कर सकते हैं। इस वैल्यू को इसके बराबर करना है जो इसके बराबर कर सकते हैं। नाउ चेक द वैल्यू correspond to 53 डिग्री इन द मेन डिफरेंस कॉलम। सो यहाँ पे 16 और 25 आ रहा है, हमें कितनी चाहिए 14 और चाहिए, तो 14 के नियर बाय तो ये 16 ही बन रहा है, ठीक है। तो हम 16 के कॉरस्पॉन्ड मिनट कितने हैं 2 मिनट है, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो मेन डिफरेंस का जो 2 मिनट है उससे वैल्यू है 16, तो व्हेन वी ऐड दिस 16 हियर वी गेट 1.3335 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.3333। सो हमारे पास जो वैल्यू बन गई अब बीटा की क्या आ गई 53 डिग्री 6 मिनट एंड 2 मिनट को एडिशन किया तो 8 मिनट। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा। So hence beta is equal to tan inverse within bracket 1.3333 is equal to 53 degree 8 minute.